अच्छा लग रहा। श्रेयस एक काम करते हैं, प्लीज कार्ड सबको शेयर कर दो, एक पेन सबको दे दो। आप लोग छोड़ दो, मैंने आपको बोला था कि हम जब भी मिला करें नोटबुक पेन के साथ मिला करें, बोला था कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम whenever we meet we have to meet with pen. ध्यान देना आपने ना, मेरा नाम क्या है? वैसे नेक्स्ट टाइम whenever we are meeting we should meet with. मैम इनके हमने ना पेन्स रखे हैं, स्केच पेन्स का पूरा पैकेट, पेपर शीट ऑफ पेपर मंगवा लें। अगर मंगवा दें तो हाँ। ये हम लोग थोड़ा अगर कुछ सब कर पाए। ठीक है, गिव मी Ma'am, it was the very first time that I was doing like this kind of project, and I asked my grandparents, my father for these all, and they told me like what you have to do with it. I said I wanted to publish a book about it, and they were very happy for like I am achieving a big goal like this, and it was very new to me. I was like, how can I do it? But yeah, slowly I did adopt myself in this, and it has been like the journey was so good. Thank you. My experience was also good. I also feel very happy for that. I always trouble my nanu and grandfather for telling again and again, tell me this. That also they appreciate with me for telling this. Thank you. और भी बताओ। That is एक point. याद करना, जो याद जो लिखा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आप बताओ। Jan, how was your experience? What did you learn? I think you are the youngest of the lot. It was my first experience of writing the book. I already wanted to write a book. You already wanted to write a book. So what did you learn? I learned about many things about our ancestors, etc. Like tell me one thing that you learned. Games. Games. अच्छा बोलो। When I told my mother about it, she was like, go and call your nani. She knows everything about it. So what did you learn eventually? One thing that you learned. I learned about the flowers type. नहीं तो है, मुझे मतलब मुझे तो एक वर्ड याद है, बट आई डोंट थिंक सो वो है इसमें। Ritual also. रिचुअल होगा, पूगे मुद्रा ये सब कुछ होगा, कश्मीरी रिचुअल। It was a nice experience working with you. I really enjoyed it. And one thing I learned from this project is I learned the traditions and cultures of my family, which I didn't know earlier. It was a very unique experience for me. I learned so many things, and I'm truly grateful to sir for believing in me. So what did you learn? I learned about the games and Kashmiri. Games. So everyone has learned about games. What else has anyone learned? Mythical creatures. Mythical creatures. For the first time I was participating in such project. It was really nice to know. So what did you learn? I learned a lot about my own culture, a lot of dishes, and I also learned to make keyboard and मैम एक बार मैं आपको पूछना चाहूँगी, आपमें से कौन सा your favorite कुछ है? Oh, I have seen your write-up because it was huge write-up that I've seen. आपने पूरे कश्मीर में बच्चे के विजिट के बारे में लिखा था, राइट? और हमने वो स्टोरी डाली थी कि कैसे बच्चा, if you see this story, A Trip to Kashmir, वो आपने लिखा था, राइट? अच्छा, इनकी मम्मा ने लिखा होगा जी। बट इनकी मम्मा ने जो एग्जैक्टली लिख के दिया था कि बच्चा कश्मीर जाता है और वहाँ पे क्या क्या गेम्स खेलता है, क्या क्या प्लेस खेलता है, ये लिखा था ना आपने? तो वो एग्जैक्टली हमने स्टोरी एज इट इज डाली थी, ऑब्वियसली थोड़ा सा एडिट वगैरह करके, बट वेरी नाइसली डन। मैम आप बताइए। मैम आप बताइए। आप अच्छा नहीं, आप इनके इनमें से किसी बच्चे रिधिमा, तो मैम रिधिमा ने आपके साथ क्या डिस्कस किया था? ये पूछ रही थी हमारा कल्चर क्या है, शादी क्या है, हमारे फंक्शन कैसे होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, सब कुछ बोल दिया। आपको लगा कि ऐसी चीजों की जरूरत है? यस दुनिया से ये अपने दादाजी को बोलती है, हर किसी को उसने इन्वॉल्व किया, मुझे ये चीज करो, मुझे ये चीज, मुझे क्या नहीं, हमारी बुक। थैंक यू मैडम, मुझे काफी सीखा अपने कल्चर के साथ। थैंक यू। रिधिमा इज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड और इसके पेरेंट्स जो हैं दे आर लाइक अदर्स आल्सो, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव।
वेरी नाइस। Oh, yeah. मैम आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैम खड़े मत होइए, मैं रिकॉर्ड मम्मा सो शेयर तो मैं बस इनसे अपने नानू से सब कुछ पूछा हुआ है, हर एक चीज उसे पूछा, क्योंकि हम रिलेटिव ऐसे बेसिकली श्रीनगर के थे, तो हम बचपन से ही यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो नानू थे उन्होंने इसके साथ सब कुछ शेयर किया है, हर एक चीज, वेजिटेबल हो गया, फेस्टिवल हो गया, वेडिंग का हो गया, सब कुछ उन्होंने शेयर किया इसके साथ। मैम आप बताइए। तो पहले हम लोग, क्योंकि आप लोगों ने इतना महान काम कर दिया है, तो पहले हम उस महान काम को द आइडिया वॉज कि आपको ये सर्टिफिकेट्स मिनिस्ट्री में ही मिले, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। और जो ये प्रोग्राम इसमें रन करते हैं, आई डोंट नो दिस प्रोग्राम इज रन बाय पर्सन कॉल्ड अपेश। आई विल डू अ वीडियो कॉल टू हिम एंड आई विल शो हिम ऑल ऑफ यू। बट वो आना चाह रहे थे, बट किसी वजह से वो नहीं आ पाए। बट मुझे लगा मैंने कमिटमेंट किया है तो मेरे को तो आना ही है। तो इसलिए पहले हम लोग से सर्टिफिकेट्स का काम करते हैं, एंड देन आई विल डू अ स्मॉल एक्टिविटी विद देम। जी जी ठीक, थैंक यू। दुनिया के जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स है, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी तकनीकी में देखते हो ना, जैसे सास बहू का भी हो या कोई भी हो, एक जैसी स्टोरी होती है ना, कुछ नया तो होता नहीं। अब उनके लिए वो लिखना कितना मुश्किल है, रोज वही चीज लिखना, रोज वही, तो कभी ना कभी कोई सीख जाता है। दे आर नॉट एबल टू राइट कि भाई आप तो नहीं लिख पा रहे, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। सो व्हाट एनीवन डज, मैं स्क्रिप्ट राइटर्स की एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि प्रोफेशनली भी किया जाता है एज अ प्रैक्टिस, बट दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज फ्री राइट। फ्री राइट का पर्पस ये है कि आपके दिमाग में, आप जब एक्सरसाइज करते हो तो क्या करते हो? पहले एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, क्या करते हो? वार्म अप करते हो। क्यों करते हो वार्म अप? क्यों करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी से पहले वार्म अप क्यों करते हैं? उस मोशन में आए, राइट? अब हमारे दिमाग में, क्योंकि हम लोग, आवर माइंड इज ऑलवेज रिएक्टिव टू थिंग्स जो हमारे आसपास है, वी आर कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग व्हिच इज आउटसाइड अस, राइट? सो वी डोंट नो एक्चुअली हम सोच क्या रहे, उस प्रोसेस तक तो हम पहुंचते ही नहीं है कभी। अब आप देखोगे अधिकतर बच्चों ने, इवन मुझे भी लिखने को बोलोगे तो मैं भी आज शायद सर्टिफिकेट और यही सब लिखूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा है। बट अगर मुझसे कॉन्शियसली पूछा जाए व्हाट इज इट आई वांट टू राइट, और अगर मैं 10-15 मिनट तक कॉन्स्टेंटली लिखूंगी तो कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जो सर्टिफिकेट के बाहर होगा, एक्चुअली व्हाट माय माइंड इज थिंकिंग। सो अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस एक्सरसाइज टू गेट देयर माइंड फ्री फ्रॉम द क्लटर। तो काफी बार आप जब कॉन्स्टेंटली लिखते हो विदाउट थिंकिंग, सोचना नहीं है, इसका पर्पज ये है कि आपको सोचना नहीं है, बिकॉज इफ यू थिंक देन यू आर थिंकिंग समथिंग, राइट? एंड देन यू आर राइटिंग अबाउट इट। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू राइट। दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। राइट इन कभी भी महीने में, हफ्ते में एक बार, कभी भी आप आधा घंटा बैठ के बस लिखो, कुछ भी लिखो बिना सोचो, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि दिमाग में ये भी चल रहा था, अरे तो मुझे पता ही नहीं, ये भी चल रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके दिमाग से अपने आप निकलेगी। और मैं लड़कियों के लिए खासतौर से बोलती हूँ कि होते कि नहीं होते, क्यों होते, शेयर कर लो, बट उससे क्यों लाइट फील करोगे? बट व्हाई वुड यू फील लाइट बाय शेयरिंग इट विद समवन? मतलब केमिकली व्हाई वुड यू फील लाइट? सो द लॉजिक बीइंग not sharing with somebody, but even by writing, if you are feeling angry or something, even by writing something, you feel good because you convert that emotion to a language. So the moment you convert an emotion to a language, it goes to your logical side of brain, which is not that chaotic. The moment you go to the logical side of brain, बोलेगा नहीं, छोड़े इसमें कुछ सही करना, हटाओ। ऐसा लगता है ना कभी कभी, फिर 1-2 दिन के बाद इतना गुस्से की जरूरत नहीं लगता है कि नहीं लगता है कि 2 दिन बाद में गुस्सा ही लगा होता है, कम होता है ना? So basically, you have to shift your brain from the emotional side to the logical side, and that's why it is said that it's better to write and share your emotions so that it gets converted to the language form. एक तो ये चीज है। दूसरा, मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ मकसद ये नहीं था कि हम लोग सर्टिफिकेट्स दें। ऑब्वियसली प्रिंसिपल सर ने ऑलरेडी बहुत सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को, और मुझे लगा कि जब उन्होंने इतना सपोर्ट किया तो मेरे लिए एक बार तो आना बनता है कि मतलब बच्चों से खुद मिलूं। बट द अदर थिंग वाज कि मैं ये बताना चाहती थी आपको कि ये किताब तो एक पार्ट है विच इज वर्क। अब इस किताब को भूल जाओ, बन गई है ना, मतलब कर लिया आपने प्रोजेक्ट, बट इसके बाद क्या? व्हाट विल यू डू एज अ कांस्टेंट एक्टिविटी? क्या आप लिखते रहे और क्या करते हैं? इसके बाद क्या क्या करोगे वियान आप? I would keep writing on Braille books. Which books? Braille books. Braille books. What is Braille books? It's an online program which allows you to write books. Okay, nice. Really There are nice. 2 publishers. Okay. My children I have a daughter and a son. They also have. Very nice. Very nice. So which topic you are intending to write on? On science. Science. Very nice.
Ridhima, what do you plan to do? I think to work with you more. You should not be dependent on anyone. I am there forever, definitely, because that's what my job is. I like working with kids. ये मेरा regular job नहीं भी है, मुझे पसंद है. वैसे मम्मी पसंद की वजह से, ठीक है. But मेरा पॉइंट ये है कि as a regular activity, you should all commit to yourself कि आप हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार आप लोग लिखेंगे. कुछ भी लिखेंगे बट आप लिखिए. और स्कूल और प्रोजेक्ट वर्क के अलावा it has nothing to do with school, it has nothing to do with anything. जो भी आपके मन में keep on writing. इस प्रोसेस में आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता. ठीक है, that's one thing. Second, अभी ना हम लोग का सर फेस्टिवल चल रहा है, दादा नानी फेस्टिवल. ठीक है, तो जो उस दिन लॉन्च हुआ. जी मैम. Though I am not myself handling it उस तरीके से, अपरेशन doing everything about it. But इन वाले बच्चों के लिए तो मतलब जो आपके स्कूल के बाकी बच्चे भी हैं, now they know it, they have already been through that process. I would want कि ये बच्चे हमारे ambassadors हो, they create more awareness about other students also. Right. और मैं चाह रही हूँ कि इस बार उस कंपटीशन में वो इतना स्ट्रक्चर नहीं होगा कि जितना अटेंशन यहाँ पे बच्चों को किताब के लिए मिला उतना तो उसमें नहीं होता, बिकॉज इट्स अ फेस्टिवल, सब बच्चे रिव्यूज भेजते हैं. बट आई वुड वांट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दैट. उसकी लास्ट डेट शायद 10th of May है. dadanani.com पे लॉगिन करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह होगा. कुछ दिक्कत होगी तो आप मेल कर देना. मतलब वहाँ पे जो टेक्निकल टीम है, दे विल रीच आउट टू यू. जी मैम. तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे पार्टिसिपेट करें. आप पार्टिसिपेट करोगे इसमें? आप करोगे पार्टिसिपेट? पूछा ही नहीं तुमने मुझसे कि किस चीज का है, कैसे पार्टिसिपेट करना. हर चीज पे हाँ नहीं करनी है, पहले पूछना है. क्योंकि कल को कोई तुम्हें कुछ गलत बोले उसमें थोड़ी हाँ करनी है. हाँ नहीं करनी है हर चीज पे. पहले पूछना है कि किस चीज के लिए बोल रहे हो. ठीक है, तो एक दादा नानी फेस्टिवल होता है जो आपने बेसिकली ऐसे किया, दैट वी एवरी ईयर डू एज ए कॉम्पिटिशन. हम नेशनल कॉम्पिटिशन करते हैं जिसमें बच्चों को बोलते हैं कि तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो, स्टोरीज भेजो उनके और स्केच. वी डोंट टेक वीडियो सबमिशन. इस बार हम वीडियो सबमिशन बिल्कुल नहीं लेते क्योंकि वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो हम यूज नहीं कर पाते. बट आप लिख के और स्केच करके हमको भेजो, अच्छा स्केच बना के स्टोरीज का जो भी है. उसमें से जो बेस्ट स्टोरीज होती है obviously they get awarded. और इस बार they will also be part of Ministry of Culture and Portal है, they will be part of those activities also. So will you participate in that? Will you want to participate in that? तो आप लोग register करना, speak to your teachers and they will facilitate the process. दूसरी चीज ये कि जो मैंने मैम मेमोरी लेन कार्ड्स दिए हैं ना, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सब 5 minutes लगा के जो भी आपको थीमेटिक एरिया उसमें लिखना है, यू ऑल राइट अबाउट इट, व्हाटएवर इज इन दैट. एंड ये ना तो अपने पेरेंट्स से बात करके लिख सकते हैं. जो भी पेरेंट्स किसी के पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता, बट किसी से बात करके, जैसे पीछे काम है उनसे पूछो कि मेरे दिमाग में कौन सा ड्रेस है. बट लेट्स डू दिस एक्टिविटी फॉर अनदर 10 minutes. एवरीवन राइट कि व्हाट इज दैट थिंग दैट, या तो सर ये लिख सकते हैं और आप मुझे स्कैन करके भेज सकते हैं. अगर अभी लिख लेंगे तो अभी दे देंगे हम आपको, नहीं तो बाद में भेज देंगे. जैसे जो लिखना चाहते हैं अभी लिखिए, अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक सम टाइम डू इट प्रॉपर्ली मुझे स्कैन करके भेजना. जी. कलर स्कैन जी. इसमें प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, राइट. कोई ड्रेस का होगा या खाने का होगा, व्हाटएवर इट इज. बट आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करोगे, आप खुद कोई चीज, आपका भी तो चाइल्डहुड है ना, यू मस्ट बी लाइकिंग समथिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, तो आप चाहो तो उसके बारे में लिख सकते हो. तो आई गिव यू 10 minutes. 10 minutes आप एक बार सोच लो, if you want to write something, एक बार it's something interesting to you. What you can do is, हमने एक किताब बना ली, मैं नहीं भी बनाती तो आज के लिए सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म से कि आपको मेरे जैसे किसी इंसान की जरूरत नहीं है. यू कैन डू इट ऑन योर ओन. तुम्हें पता पहले जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी किताब छपनी है, आज के जमाने में बहुत बड़ी बात होती है, किताब छप जाती है उस तरीके से. What I'm trying to say कि किताब छपना नहीं छपना इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये कि आपको प्रोसेस, लिखने का प्रोसेस पसंद आना चाहिए. और लिखना मैंने खूब बोला था जरूरी है, लास्ट टाइम बताया था ना मैंने, खूब जरूरी है लिखना. किताब हमने बना दी, हमें यही नहीं पता चल रहा हमें लिखना क्यों. हम लोग यही एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है. दिस इज फॉर एवरीवन. अगर कोई पेरेंट्स इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, टीचर्स इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. आपको मैं स्टार्ट बोलूंगी, आपको लिखना है, जब स्टॉप बोलूंगी तब रुक जाओ, ठीक है. लिखना इस पे ब्लैक शीट करो, मैंने किसी और तरह से काट दिया, ठीक है. मैं आपको मेमोरी लेन वाला कार्ड जी ये ले लो, एक शीट ले लो, एक शीट ले लो, बैठो यहाँ. पेन्स ले लो, पेन्स भी ले लो. ठीक है. आप ये भी लिख सकते हो, क्या गर्मी में बिठा दिया आज, ठीक है. कुछ भी लिख सकते हो. तो जब मैं स्टार्ट करूंगी तब लिखना है, जब मैं स्टॉप करूंगी तब फिर लिखना है. ओके, ठीक है. So it should be about anything.
That's the free write. It's a free write exercise and I will tell you मैं क्यों करा. मैंने कहा कुछ भी लिखना है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो, ठीक है. जब मैं स्टार्ट बोलूँ स्टार्ट, ठीक है. कोई पेरेंट्स मैम अगर आप करना चाहते हो, कोई भी करना चाहते हो तो ये मोटर है. अगर आप करना चाहते हैं यहाँ आ जाइए, हम दे देते हैं आपको, पेपर दे देते हैं, पेन भी दे देते हैं. स्टार्ट. हर्षीन कौर. अब हम यही करेंगे. आरुष सलाजा. सांची बट. अंशप्रीत. प्रभाकरन सिंह. रिधिमा था. किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा उसमें, कोई ऐसा जिसका नाम नहीं लिखा था, क्योंकि मैंने 3 सर्टिफिकेट्स लाई थी जो उनकी लगा कुछ छूट ना गया हो. Have all of you received? थैंक यू मैम. थैंक्स सो मच मैम. एक्चुअली हम आपको भी मतलब सबसे पहले अपने टीचर्स को भी बहुत इम्पोर्टेंट है. बाकी मैम हरदीप मैम, पर मेरे को नाम तो बिल्कुल याद हो गया. पहले टीचर्स के लिए और बहुत मेहनत की थी, राइट. तो आई थिंक दैट वाज वेरी हेल्पफुल. और आपने जितना स्ट्रक्चर्ड तरीके से, वरना हम कभी भी नहीं मिले ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जनरली बच्चों के साथ मिलके आप एक्टिविटी करते हो. हमने पूरा प्रोसेस ही ऑनलाइन किया एंड इट वाज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया था. सर्टिफिकेट्स तो मतलब मेरे पास नहीं है,
I think not for all the teachers definitely, but I'm very thankful to you कि आप लोगों ने ये initiative लिया, और I would want कि हम लोग इस चीज को थोड़ा सा regularly करें. जी जी. Something else as any other project, but we should do something more regular. Thank you so much, ma'am. Ma'am, sir, मैं आप लोग तीनों मैम के साथ आ जाओ, एक इकट्ठे फोटो क्लिक कर लेते हैं. आ जाओ. हाँ, मैं किताब हाँ, बुक पकड़ लो ना, एक बुक पकड़ लो. थोड़ा पीछे हो जाओ. हाँ, पीछे. कमिश्नर सर. सर आप आइए.